Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are well. Beta, today we are going to start our third lecture. In previous lecture, in very first lecture, we discussed language, literature, then paper pattern. In second lecture, we started first year at Harrow, and we read just one paragraph of it. Now, today we will start our next reading, our next second paragraph of first year at Harrow. Beta, we were in last paragraph, and the very last line of our previous lecture is, this sort of treatment had only one result: I didn't do well in examination. Treatment, as I told you, conduct, dealing, behavior. Now he is going to share his experience about treatment. कि वो कहता है ना कि इस तरह की ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस भी मर्जी के नहीं, सब्जेक्ट्स भी मर्जी के नहीं, एग्जामिनेशन भी मेरे लिए ट्रायल, तो इस सब का अब नतीजा क्या निकला? वो कहता है उसको मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. अब कैसे नहीं कर पाता या किस पेपर में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके अब एग्जांपल देने जा रहे हैं सर विंस्टन चर्चिल. इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ सेकंड पैराग्राफ इज, दिस वाज स्पेशली ट्रू ऑफ माय एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो. एंट्रेंस मीन बेटा एडमिशन, एंट्री टेस्ट और एडमिशन टेस्ट. कहते हैं अब ये बिल्कुल सच था, हकीकत थी कि मेरे साथ इंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसा ही हुआ. जब मैं हैरो स्कूल में गया, वहाँ पे मैंने इंट्रेंस टेस्ट दिया, इंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ. और वो क्या हुआ कि the headmaster Mr. Weldon, the headmaster Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. Now, our next character is, beta, in this chapter, in this essay, we have three characters. One is Mr. Churchill, second is Mr. Weldon, the headmaster of the school Harrow, and third will be Mr. Somervell, and he is English teacher. Now, in that time at Harrow, Mr. Weldon was headmaster. अब वो क्या कह रहे हैं जी चर्चिल? The headmaster Mr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. Now beta, broad-minded. First meaning of broad-minded is forbearing. Forbearing, F-O-R-B-E-A-R-I-N-G, forbearing. Second meaning is liberal, liberal. Third meaning is open-minded, open-minded. And fourth meaning can be tolerant, tolerant. T-O-L-E-R-A-N-T, tolerant. View of my Latin, as I told you, language, Latini language. Prose mean beta, writing that is not poetry, other than poetry. You can say short story or essay. अब वो क्या कह रहे हैं जी कि मिस्टर वेल्डन ने ब्रॉड माइंडेडनेस का मुजाहरा किया मेरी लैटिन प्रोज से रिलेटेड, क्योंकि उनका जो टेस्ट हुआ वो लैटिन में हुआ. He showed, अब वो क्या था जी? He showed discernment in judging my general ability. Discernment. Discernment mean, first meaning understanding, understanding. Third meaning wisdom, wisdom. Fourth meaning judgment, judgment. And then perception. Wisdom, understanding, judgment, परसेप्शन. ये सारे ऑलमोस्ट इस पे एडजस्ट हो जाएंगे कि जो मिस्टर वेल्डन थे उन्होंने एक ब्रॉड माइंडेडनेस का मुजाहरा किया किस में कि अपनी अंडरस्टैंडिंग शो की किसके अगेंस्ट? इन जजिंग माय जर्नल एबिलिटी. नाउ बेटा द क्वेश्चन इज, व्हाट इज जर्नल एबिलिटी? हाउ कैन वी डिफाइन जर्नल एबिलिटी? नाउ बेटा, इन लिटरेचर every teacher or every person can explain literature according to his or her own, you can say, understanding, or his own, you can say, viewpoint. They can have different viewpoint. According to my understanding, general ability mean, beta, first of all, you have, you know a word, and that is IQ. IQ mean intelligent quotient. Intelligent, that how smart you are in your, you can say, marks or mental abilities or knowledge, etc. There are other skills as well. Beta, IQ के अलावा भी skills develop हो चुकी हैं. Other than IQ, we have EQ.
EQ, emotional quotient. Then we have other skills can be interpersonal intelligence. Then we have logical intelligence. Then we have linguistic intelligence. EQ, emotional quotient, like we have IQ. Then we have logical intelligence, कि logically कोई बंदा कितना strong है, किसी का मैथ्स वगैरह में वो कितना strong है, logic के through बात करता है वो. Then we have interpersonal skills. Interpersonal skills mean people skill. People skill, how to deal people, how to interact with different टाइप ऑफ पीपल. लोगों के साथ आपने कैसे इंटरैक्ट करना है, लोगों को आपने कैसे डील करना है. और इसी तरह एक और स्किल है, और वो क्या है? लिंग्विस्टिक स्किल. लिंग्विस्टिक, आई थिंक वी डिस्कस्ड इन lecture 1, scientific study of language. Scientific study of language. Now linguistic skills means, linguistic mean in general sense जबान, language related. के कुछ लोगों का IQ स्ट्रांग है, होता है बच्चा, कुछ लोग EQ में स्ट्रांग होते हैं. और ये जितने जो बिजनेसमैन कह लें, ये ज्यादा EQ में स्ट्रांग लोग होते हैं, जिनको लोगों को हैंडल करना आता है और वो आगे एक्सेल करते हैं. कुछ लोग लॉजिकली स्ट्रांग होते हैं. कुछ लोग इंटरपर्सनल स्किल्स में, ये EQ और इंटरपर्सनल ऑलमोस्ट सेम है, उसमें स्ट्रांग होते हैं. और कुछ लोग इसमें और भी हैं, ये मैं आपके अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग 2-3 डिस्कस कर रहा हूं. कुछ लोग लिंग्विस्टिक स्किल्स उनकी स्ट्रांग होती है, मीन के रिटन एक्सप्रेशन उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो लिटरेचर में बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, लैंग्वेज में स्ट्रांग होते हैं. ये एक जनरल एबिलिटी. अब ये जनरल एबिलिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूं. फिर इसी तरह जनरल एबिलिटी आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपकी करेज हो सकती है, आपका ये जैसे अब इसमें ये ना कि लैटिन और मैथमेटिक्स में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इट मींस कि वो जीरो है, वो लाइफ में फेल है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा. नो, ये नहीं है. मैथ का ना आना, लैटिन का ना आना, इंग्लिश का ना आना, फिजिक्स का समझ ना आना, केमिस्ट्री का समझ ना आना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लाइफ में आप जीरो हैं, लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते. कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो तो पढ़े हुए नहीं है, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, वो लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं. तो मार्क्स के अलावा, लैटिन प्रोज को और मैथ्स को समझने के अलावा, IQ के अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं. अगर आप उनमें स्ट्रांग हैं तो आप उनमें एक्सेल कर सकते हैं. तो अब ये जो कह रहा है कि मे बी मिस्टर वेल्डन ने मेरी जनरल एबिलिटी को क्या कर लिया था, जज कर लिया था. तो ये ब्रीफली मैंने जनरल एबिलिटी को बेटा एक्सप्लेन किया. ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चर्चिल की फ्यूचर लाइफ को देखें कि वो 2 टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, पॉलिटिशियन बने, फिर राइटर बने, तो वी कैन से लिंग्विस्टिक intelligence, and then we can say EQ, emotional quotient, और interpersonal skills, कि उनकी interpersonal skills strong थी, तभी तो वो politician बने, तभी तो वो prime minister बने. जिनकी interpersonal skills अच्छी नहीं है, लोगों को डील करने की skills अच्छी नहीं होती, तो वो तो फिर लोगों को हैंडल भी नहीं कर पाते. तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उस टाइम पे वेल्डन ने मिस्टर चर्चिल की ये 2 skills परसीव कर ली थी कि इनमें ये 2 skills हैं, ऑल्दो ये लैटिन में परफॉर्म नहीं कर पाए, मैथ्स में जो टेस्ट हुआ उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए. इट्स ओके. आई होप बेटा ये जनरल एबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, दिस वॉज द मोर रिमार्केबल. रिमार्केबल मीन अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, अमेजिंग, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये सारे मीनिंग इसमें फिट हो जाएंगे. कहते हैं अब ये चीज बड़ी मेरे लिए अमेजिंग थी, अनबिलीवेबल थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी. क्यों? Because I was found unable to answer a single question in the Latin paper. कहते हैं मैं तो लैटिन पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाया, मैंने तो लैटिन पेपर में कुछ लिखा ही नहीं. बट स्टिल मिस्टर वेल्डन गेव मी एडमिशन एट हैरो. फिर भी उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया. ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी. ये जैसे आप किसी पेपर में अपीयर हुए, पेपर में लिखा कुछ नहीं, मार्क्स 80+ आ गए, मार्क्स 90+ आ जाए, तो हैरान होंगे ना, भाई ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था. ओके, नाउ अब वो बताएगा मैंने क्या किया पेपर में. I wrote down the number of the question 1. ये आप बेटा बुक होगी आपके पास टेक्स्ट, वो कहते हैं जी मैंने क्या किया 1, बस इसको ब्रैकेट लगाएं या बुक 1 लिख दिया. ओके, सॉरी बेटा इससे ऊपर एक लाइन हम मिस कर गए. इससे पहले I wrote my name at the top of the page. कहते हैं सबसे पहले तो मैंने उसका पेज का क्या लें, जो भी टॉप है इधर नेम लिखा, नेम के बाद नेम लिख दिया, नेम के बाद मान लिख दिया जी. पहला काम नेम, सेकंड क्या लिखा जी 1. ओके,
या पेपर की बात हो रही है. After much reflection, I put a bracket round it. Thus, reflection mean thinking. Thinking. कहते बहुत ज्यादा, फिर वन लिखा, सॉरी नेम वन, सोचता रहा क्या करूं, क्या लिखूं, फिर माइंड में आया जी ऐसे कर देते हैं, सॉरी बच्चा, ब्रैकेट्स डाल दी वन के साथ, ये काफी ज्यादा सोच के बाद. देन रिफ्लेक्शन पुट ब्रैकेट लाइक दिस. But thereafter, I couldn't think of anything connected with it that was either relevant or true. Thereafter mean after that. After that. नाम के बाद, वन के बाद, इसी वन पे फिर साथ ब्रैकेट डालने के बाद कहता है मेरे माइंड में कोई और ऐसी चीज नहीं आई जो क्या हो, आइदर रेलिवेंट, जो रेलिवेंट हो, या वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे लैटिन का जो क्वेश्चन होगा उससे कोई रेलिवेंट हो या कनेक्ट, उस पे किसी भी तरह उसका लिंक हो रहा हो, वो मेरे माइंड में कोई चीज ऐसी नहीं आई कि जो मैं पेपर में लिख सकूं. अब यहां पे बच्चे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखें, मैं जनरल ये बात करूं, आपको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, हर किस्म के स्टूडेंट क्लास में होते हैं बच्चे, कि अगर देखा जाए तो चर्चिल का उस लैटिन में जो बिहेवियर था वो मेरे जो आप मतलब कुछ जो हमारे यहाँ, मैं जनरली बात करता हूँ स्लो लर्नर हैं, उससे भी जिसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ गया गुजरा था. कैसे कि हमारे स्टूडेंट तो फिर भी रेलेवेंट नहीं तो इररेलेवेंट तो लिख आते हैं, जिसको हम कहते हैं ना सफे काले कर रहा हो जी, बस सफा तो काला कर रहते हैं ना, लिखते इससे तो कुछ भी नहीं लिखा, इररेलेवेंट भी नहीं लिख पाया, ये तो नेम लिखा, मान लिखा, ब्रैकेट डाली, दैट्स इट. अब पता क्या चला बच्चे कि कुछ भी नहीं लिखा पेपर में, तो फ्यूचर के वो राइटर बने, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बने. हमारे यहां बच्चा ब्लैंक पेपर दे दे तो वो उसको लेबलिंग की जाती है, डल है, ब्लैंक है, ये लाइफ में क्या करेगा. नो, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, माय परसेप्शन, यू कैन नॉट लेबलिंग एनी वन स्टूडेंट और सिंगल स्टूडेंट दैट यू विल बिकम दिस, यू विल बिकम दिस, यू विल बिकम दिस. ये आप नहीं कह सकते, आपको नहीं पता एज अ टीचर कि आपकी क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट फ्यूचर में क्या कर जाएगा, कौन सा स्टूडेंट फ्यूचर में कितना बड़ा काम कर जाएगा, ये हम नहीं कह सकते. और किस बेस पे नहीं कह सकते वो मेंशन करेगा भी, सिर्फ पेपर मैनिफेस्टेशन की बेस पे, सिर्फ टेस्ट की बेस पे, सिर्फ मार्क्स की बेस पे. ये आप नहीं कह सकते कि ये फ्यूचर में क्या करेगा और अभी ये क्या कर रहा है. और इसकी रियल एग्जांपल क्या है मेरा बच्चा, ये चर्चिल की लाइफ है जी. नेक्स्ट, इंसिडेंटली बाय चांस there arrived from nowhere, in particular, a blot or several smudges. Blot means spot, S-P-O-T, spot. Stain, S-T-A-I-N, stain, जिसको हम ये दाग वगैरह कहते हैं, ये होता है ना, ये ब्लॉट है, ब्लॉट, ये ब्लॉट इस तरह, अगर और हम इस तरह डालें तो ये सारे क्या हैं, ब्लॉट. अच्छा, then smudges, several smudges mean dirty marks, मतलब उसी को अब उसको एक्सटेंड कर दें, डॉट हैं, फिर इसी तरह और उसमें वो डॉट्स बढ़ना शुरू हो गए. अब ये फोर्थ काम हुआ, नेम, वन, ब्रैकेट, फिर डॉट्स, smudges, पेपर में आंसर शीट के ऊपर डर्टी मार्क्स, दैट्स इट. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle. Gazed mean looked. Stare, S-T-A-R-E-D, stared. 2 घंटे में ये इस स्पेक्टिकल को देखता रहा. स्पेक्टिकल मीन व्यू, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, जो भी आप इसको नाम दे. अब ये परफॉर्मेंस है ना, कि मेरी पिछले 2 घंटे की परफॉर्मेंस क्या है, नेम, वन, ब्रैकेट, स्पॉट, स्मजेस, दैट्स इट. कहता है 2 घंटे में इसी परफॉर्मेंस को देखता रहा, इसी का नजारे करता रहा मैं. फिर and then merciful ushers collected my piece of foolscap with all the others. Merciful means soft-hearted, kind. Ushers mean can be different meaning. Guide, assistant teacher, or generally we can say somehow invigilator. कहते हैं वो जो वहां पे गाइड थे, असिस्टेंट टीचर थे, वो जो इन्विजिलेटर थे वो आए और उन्होंने क्या किया जी, collected my piece of foolscap. Foolscap mean writing, piece of writing. Here we can say answer sheet. वो जो उनकी आंसर शीट थी जिस पे उन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था,
कहते उन्होंने वो कलेक्ट किया विद ऑल द अदर्स, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, एंड कैरीड इट अप टू द हेडमास्टर्स टेबल, और किस पे जाके रख दिया? हेडमास्टर के टेबल पे जाके पेश कर दिया जी, ये स्टूडेंट्स की एंट्री टेस्ट है और ये इनका है, चेक करें जी। और हेडमास्टर कौन थे बच्चा? मिस्टर वेल्डन। नाउ it was from these slender indications of scholarship that Mr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into Harrow. Now bacha, it was from these cylinder mean little, small, inadequate, INADEQUATE, inadequate मीन जिसको हम कहते हैं ना वैसे ऑर्डिनरी सी, इंडिकेशन मीन क्लू, CLUE क्लू, साइन, एविडेंस, EVIDENCE एविडेंस, कहता है यही एविडेंस था, यही सिलेंडर इंडिकेशन थी। अ स्कॉलरशिप मीन नॉलेज, मेरा नॉलेज, मेरे नॉलेज की जो इंडिकेशन थी वो मेरा नाम था, वन था, ब्रैकेट थी, स्पॉट, ये मार्क्स थे। इन इस क्लू की बेस पे, इन इंडिकेशंस की बेस पे क्या हुआ जी? मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन, उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे। वो क्या था? दैट आई वॉज वर्दी टू पास इनटू हैरो। वर्दी मीन डिजर्विंग, कैपेबल, कि मैं एल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे हैरो में एडमिशन मिलना चाहिए, मैं एडमिशन ले सकता हूं। और उन्होंने उसको क्या किया? एडमिशन दे दिया। इट वॉज वेरी मच टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट मीन रिस्पेक्ट, वैल्यू, कॉन्ट्रीब्यूशन, रिस्पेक्ट, वैल्यू, कॉन्ट्रीब्यूशन, कि ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? हेडमास्टर को जाता है। उन्होंने मुझे एडमिशन दिया इन सिलेंडर इंडिकेशंस की बेस पे। नाउ अब आता है जी वो जरा मिस्टर वेल्डन को डिस्क्राइब करेंगे चर्चिल साहब, वो कैसे करेंगे? इट शोड दैट ही वाज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स। इट शोड, व्हाट शोड? द अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन ऑफ मिस्टर वेल्डन, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी परसेप्शन, जिसकी बेस पे उन्होंने मिस्टर चर्चिल को एडमिशन दिया, कहता है ये सारी चीज क्या शो करती है? कि अ मैन कैपेबल मीन कॉम्पिटेंट, एबल of looking beneath the surface of things, looking beneath the surface of things. Now beta, there are generally two surfaces of anything. One is surface structure, as the name indicating, surface structure, ये सबको नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड सरफेस स्ट्रक्चर है, सबको नजर आ रहा है। इसी तरह किसी भी चीज का एक डीप स्ट्रक्चर होता है बच्चे, डीप स्ट्रक्चर मीन हिडन स्ट्रक्चर। अब हिडन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बच्चे? इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या हो सकता है? लाजमी तो नहीं है ये वॉल ही होगी, दीवार ही होगी, मे बी इतने से पीस पे यहां पे विंडो हो और विंडो पे हमने व्हाइट बोर्ड फिट किया हुआ हो। जनरली लोग देखेंगे वो कहेंगे यहां जी दीवार है जी, लेकिन जो कीन ऑब्जर्वर होगा, जो विजनरी पर्सन होगा, वो कहेगा लाजमी नहीं है, दीवार के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, विंडो भी तो हो सकती है, इसकी बैक साइड पे कुछ और भी तो हो सकता है। अब ये डीप स्ट्रक्चर है। मिस्टर वेल्डन सरफेस स्ट्रक्चर को देखते तो नेम वन और डॉट्स की पे जाते तो उनको एडमिशन ही नहीं देते। कहते हैं ये क्या करेगा फ्यूचर में, डल स्टूडेंट है। डीप स्ट्रक्चर पे गए, डीप स्ट्रक्चर हम इसको सेकंड नेम दे सकते हैं हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट को देखने के लिए मेरा बेटा विजन चाहिए, एंड विजन की डेफिनेशन मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बताई थी। विजन इज एबिलिटी टू सी इनविजिबल, विजन इज एबिलिटी टू सी इनविजिबल, इसके पीछे देखने की एबिलिटी को विजन कहते हैं। विजन इज लिविंग इन प्रेजेंट, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। विजन को मेरा बच्चा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विजन क्या है? मैं ये हम इमेजिन करेंगे, ये एप्पल है बच्चे, एप्पल है नहीं बता रहा हूं, एप्पल है। मैं आपको कहता हूं, क्लास में कहता हूं डिस्क्राइब इट, एक्सप्लेन इट। एक स्टूडेंट कहेगा सर येलो है, दूसरा कहेगा सर स्मॉल है, तीसरा कहेगा सर बड़ा है जरा, चौथा कहेगा सर ये बड़ी हेल्दी फूड है, नेक्स्ट को कहेगा सर ये बड़े स्वीट होते हैं। सारे ठीक कह रहे हैं, जो विजनरी होगा वो क्या कहेगा? अब समझेंगे विजन को बच्चे, समझेंगे। विजनरी कहेगा सर जी ये एप्पल है, एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, उन सीड से हम मल्टीपल एप्पल क्रिएट कर सकते हैं, ये विजन है।
जो छुपी हुई चीज को देखेगा, जो हिडन चीज को देखेगा, ये मेरा बच्चा विजन है। बाकी भी ठीक कह रहे हैं, वो सरफेस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो सीड्स देख रहा है, जिसकी नजर सीड पे है, ये डीप स्ट्रक्चर देख रहा है, ये हिडन टैलेंट देख रहा है, ये विजन है मेरा बच्चा। एंड मिस्टर वेल्डन वॉज विजनरी पर्सन, एंड Mr. Churchill giving admission to Mr. Churchill at Harrow School is the example of Mr. Weldon's vision. ये Mr. Weldon की क्या थी बच्चे, विजन की एग्जाम्पल है कि विजन की बेस पे मिस्टर वेल्डन ने मिस्टर चर्चिल को हैरो स्कूल में क्या किया, एडमिशन दिया। नाउ आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी बच्चे, ये beneath स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, looking beneath the surface of things. Now a man not dependent upon a paper manifestation. Mr. Weldon वो बंदा नहीं था, वो पर्सन नहीं था जो डिपेंड करे, डिपेंड मीन रिलाय, इन्हार करे, किस पे, पेपर मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन मीन डिस्प्ले, शो, अपीयरेंस, डिस्प्ले, शो, अपीयरेंस, एक्सपोज। अब समझेंगे बच्चा, देखें आप में से स्टूडेंट ने टेस्ट दिए, टीचर के पास आए, अब टीचर ने क्या किया, ये पेपर मैनिफेस्टेशन है, इसको हम कंसीडर करेंगे, ये आपका पेज है, ये आपकी आंसर शीट है, इस पे आपने आंसर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, कंटेंट्स भी अच्छे हैं, बड़े अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब एज अ टीचर वो मार्क्स दे देंगे जी, 4, 5, 6, जितनी उसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स दे दिए, आसान काम है। पेपर मैनिफेस्टेशन तो ये कहती है, लेकिन लाजमी तो नहीं है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि पेपर मैनिफेस्टेशन जिसकी अच्छी नहीं है, मार्क्स जिसके अच्छे नहीं है, पेपर जिसने अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, आंसर जिसने अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो वो जीरो है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। 100 पॉसिबिलिटीज है, एक बंदा है वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं, मत इसको आप यूं समझिए, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर जजिंग अ पर्सन्स एबिलिटी। बच्चा, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर, एक पेपर की बेस पे आप किसी स्टूडेंट की एबिलिटी को जज नहीं कर सकते। एक उसकी कई रीजन है, वो उस दिन बीमार है, उसकी फैमिली में कोई इश्यू है, वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, जैसे चर्चिल के साथ केस था कि सब्जेक्ट की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं थी, तो वो इसका मतलब है कि वो जीरो है? नहीं, आप उसको थोड़ा चांस तो दें, थोड़ा और डिफरेंट एंगल से तो उसको जज करने की कोशिश करें, हो सकता है लाइफ में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए और उसकी बहुत अच्छी स्किल्स हो, जैसे मिस्टर वेल्डन की थी, तो चर्चिल की थी, और मिस्टर वेल्डन ने सिर्फ पेपर पर मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड नहीं किया। पेपर मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करते तो पेपर में तो नेम लिखा था जैसे उसने, पेपर में तो 1 और ब्रैकेट डालनी थी, पेपर में तो ये बस डॉट से दैट्स इट, पेपर मैनिफेस्टेशन तो ये थी। और इसकी बेस पे तो अगर जनरली देखें तो उसको वो एडमिशन डिजर्व ही नहीं करता था, उसको तो कोई एडमिशन उसमें स्कूल में देते ही नहीं। ओके, नाउ manifestation, I told you, I have always had the greatest regard for him. Regard mean respect, love, value. कहता है मैं हमेशा इनको कदर की निगाह से देखता हूं, मिस्टर वेल्डन को दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। क्यों रिस्पेक्ट है मेरा बच्चा, फिर देखेंगे। अगर मैं जनरल बात कर रहा हूं कि इसको अगर एडमिशन ना मिलता हैरो पे, तो मे भी वो फ्यूचर का राइटर ना बन पाता, मे भी वो फ्यूचर के ब्रिटिश पॉलिटिशियन और 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते, वो तो बेचारे कहीं बिखर जाता। जैसे हमारे यहाँ मतलब जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है कि किसी एक इंसिडेंट की बेस पे, मैं खुद मुझसे हो जाती हैं, कई गलतियां हुई हैं कि स्टूडेंट को हम इग्नोर कर जाते हैं, स्टूडेंट को हम उस तरह जज नहीं कर पाते, स्टूडेंट डिसहार्ड हो गया, बेचारा डिस्करेज हो गया, वो उसने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, वो बेचारा बिखर गया, जाया हो गया लाइफ में। लेकिन वो अगर वहां पे सस्टेन करता, और एज अ टीचर मैं ब्रॉड माइंडेडनेस का मुजाहरा करता, एज अ टीचर मेरे अंदर अगर विजन होता और उसको मैं कैरी करके थोड़ा आगे लेके चलता, तो मे भी वो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये बच्चे इसमें ये सेकंड पैराग्राफ में था और उसने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसने बताया अपने लैटिन पेपर के बारे में, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा एक्सेप्ट नेम 1 डॉट्स, एंड अगेन ड्यू टू दीज स्लेंडर इंडिकेशंस मिस्टर वेल्डन गेव मी एडमिशन एट हैरो। और उसके बाद उसने लास्ट लाइन में मिस्टर वेल्डन के बारे में चर्चा ने बताया कि ही वाज अ विजनरी मैन, ही वाज अ मैन not depending on paper manifestation, he has or had the ability to see invisible things, to see, not see, looking beneath
द सरफेस ऑफ थिंग्स, कि उनके अंदर एबिलिटी थी कि वो सरफेस के बीनीथ हिडन स्ट्रक्चर को, हिडन टैलेंट को देखने की एबिलिटी भी क्या करते थे, रखते थे। ये ओवरऑल मेरा बेटा सेकंड पैराग्राफ था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको बेटा दोबारा से सुनेंगे कहीं पे कोई, और फर्स्ट पैराग्राफ के साथ इसको रिलेट करेंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो अगेन हम क्यूरी सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।